भारत जोड़ो यात्रा ने हिंदुस्तान के पॉलिटिकल नैरेटिव को बदल दिया। हिंदुस्तान के जो मुद्दे हैं इनको हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से उठाएंगे। तो आसाम का इतिहास है, हिस्ट्री है, उसी को हम फिर से दोहरा रहे हैं। शंकर देव जी ने आपको रास्ता दिखाया था, सबको जोड़ने का काम किया था, उसी रास्ते पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलने जा रही है। मोदी जी विल डिसाइड मंदिर कौन जा सकता है, कब जा सकता है और कब नहीं जा सकता। मुझे बताइए मैंने गलती क्या की? हमें वहाँ इनवाइट किया गया, अब एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है नहीं जा सकते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं जा सकते हैं? क्या गलती की है मैंने? मैं बस हाथ जोड़ने जाना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, बट ये अलाउ नहीं कर रहे। अब देख रहे हैं, बस मैं कारण पूछ रहा हूँ। नाउ गवर्नमेंट एंड मोदी जी विल डिसाइड मंदिर कौन जा सकता है, कब जा सकता है और कब नहीं जा सकता है। शायद आज सिर्फ एक व्यक्ति मंदिर में जा सकता है। समिति पर असम के मुख्यमंत्री पर दबाव है और हम सब जानते हैं असम के मुख्यमंत्री पर किसका दबाव होता है। तो मैं और लोकल एमएलए जा सकते हैं। नॉट राहुल जी क्यों नहीं जा सकते? नॉट राहुल जी नहीं तो ये जा सकते हैं, मगर मैं नहीं जा सकता। तो मैंने क्या गलती की है?
It's important because you are the future of this country. And the most important thing for this country is that all of you are allowed to think freely, to believe freely, to imagine freely, and to live the life that you want, not live the life that somebody else wants. Now, I wanted to come to your university and talk to you, embrace you, listen to you, understand what you are facing, and try and see in my own little way if I could have helped you. Now what happened? The Home Minister of India, called up the Chief Minister of Assam, and then the Chief Minister of Assam's office called up the leadership of your university and said that Rahul Gandhi must not be allowed to speak to the students of this university. Right? Now, why is it important? It's not important that Rahul Gandhi comes or Rahul Gandhi doesn't come. That's not important. What is important is that you are allowed to listen to anybody you want to listen to. Now, this is taking place not only in Assam. This is taking place in every single university, college and school of India. You are being told that you must blindly obey the RSS and the leadership of this country. You are being told that you should not have your own imagination. You are being told that you cannot speak your own language. You are being told that you cannot have your own history. That is what is going on here. So what is being done is you are being made blindly obedient. They are trying, brothers and sisters, to turn you into slaves. And I know that nobody, no force in this universe can ever turn you into slaves. It is not possible. So what I want to leave you with is this country belongs to you. This country has to follow your imagination. And nobody should be allowed to prevent you from imagining and thinking about the India that you want. Nobody should be able to stop you reading or writing in any language you want. Nobody should be able to stop you. Nobody should be able to stop you from listening, reading your tradition, your culture, your history. It's not about Rahul Gandhi coming here. That's the least important thing happening here. It is about you having an imagination, you being allowed to do what you want. I really appreciate that you have come here. Because you have come here because you do not agree with what the Chief Minister is trying to do. You are not ready to accept an enslaved Assam. And I am extremely proud of you for that. Thank you very much to the people. I thank you all students because you have done that. Now, I want to speak also in a little bit of Hindi. देखिए, मैं यहाँ आया, मैं आपसे गले मिलने आया, आपकी बात सुनने आया, आपके सपनों के बारे में सुनने आया। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने फोन उठाया, आपके चीफ मिनिस्टर को फोन लगाया, कहा राहुल गांधी को स्टूडेंट से नहीं मिलने देना है। हेमंतो जी ने यहां पे आपके जो लीडरशिप है, प्रिंसिपल्स हैं, उनको फोन लगाया, कहा राहुल गांधी असम के स्टूडेंट से, असम के छात्रों से, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट से नहीं मिल सकता है। और इसीलिए मैं यहां नहीं आ पाया।
मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। यह हो रहा है हिंदुस्तान में। आपको कहा जा रहा है कि आप सोचो मत, आप सपने मत देखो। जो आपको बताया जा रहा है ऊपर से, उसको आप सुन लो। मैं आपसे यहां कहने को आया हूं, आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। अगर आपने सोचना बंद कर दिया, अगर आपने सपना देखना बंद कर दिया, तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, हिंदुस्तान नहीं बचेगा। क्योंकि हिंदुस्तान आपकी शक्ति पे चलता है। यह राहुल गांधी की बात नहीं है, राहुल गांधी इसमें जरूरी नहीं है। यह हिंदुस्तान के भविष्य, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स की बात है। यहां पे नॉर्थ ईस्ट में आपकी भाषा को दबाया जा रहा है, आपके इतिहास को दबाया जा रहा है, आपके कल्चर को दबाया जा रहा है। आपके एंसेस्टर्स ने जो आपको कहा, उसको ये रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये नहीं होने दो, ये कभी नहीं होने दो। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, किसी स्टूडेंट को डरने की जरूरत नहीं है। आप इस देश के भविष्य हो। जो सपना आप देखना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, जो आप पहनना चाहते हो, वो आप करो, कोई आपको नहीं रोक सकता है। दिल से आप सबको धन्यवाद कि आप यहां आए, आपने मुझे इतना प्यार दिया। मैं भी आपको प्यार देता हूं। आई लव ऑल ऑफ यू, आई लव ऑल ऑफ यू, आई लव ऑल ऑफ यू। थैंक यू।
असम में राहुल गांधी जी के पहले दिन से ही जो एंट्री हुआ था, तब से लेकर आज तक जो बीजेपी वाले उसको डर लगता है, क्योंकि राहुल गांधी को इतना सपोर्ट मिला है। असम में राहुल गांधी आ रहा है ना, वो डर से पुलिस को पूरा लगा दिया है। राहुल गांधी आया है, ये बहुत पत्थर फेंका है, लड़ाई हुआ है, बहुत गलत हुआ है ये। प्रशासन ने राहुल गांधी जी के साथ बातचीत करने से रुकावट की और इसलिए हम पूरा यहाँ जितना कांग्रेस प्रेमी इसमें नाखुश है। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी गो बैक, बीजेपी गो बैक। पंचायत में हो घर का लिस्ट आया है, तुम जो कांग्रेस की मीटिंग में जाओगे तो घर का नाम काट देंगे, ऐसे ही हमको दबा देते हैं। राहुल जी का पुस्तक फाड़ रहा है, बैनर फाड़ रहा है, होर्डिंग फाड़ रहा है। ये जो फाड़ रहा है ये बीजेपी का गुंडागिरी, बीजेपी के गुंडाराज इधर चला रहा है। डेमोक्रेसी को हत्या हो रहे हैं, संविधान को हत्या हो रहे हैं, इसलिए तो राहुल जी फाइट कर रहा है कि संविधान को रक्षा करे और डेमोक्रेसी को रक्षा करे। लेकिन बहुत पब्लिक है, लेकिन अब बारूपुजिया से लेकर मोरीगांव तक आइए, देखिए पूरा रूट ब्लॉक है, सब कांग्रेस का पार्टी है, लेकिन आने के लिए मौका ही नहीं दिया। हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो स्वतंत्रता है, वो हमारा नहीं है, क्योंकि बटरवा थान में सब लोग जा सकते हैं, लेकिन ये बीजेपी का गुंडाराज नहीं चलेगा। इसलिए बाधा क्यों दे रहा है? क्योंकि हमारा गणतंत्र ही नहीं है। जब तक बीजेपी सरकार रहेगा हमारा गणतंत्र नहीं रहेगा। ये जो बीजेपी ने किया है ये बहुत गलत हुआ है। तो आजकल ऐसा हो रहा है, अब कांग्रेस का नाम भी लेते तो बीजेपी के लोग हमारे ऊपर कुछ ना कुछ करके हमको दबा देते हैं। आरएसएस और बीजेपी पार्टी को ये बहुत खतरनाक पार्टी है। बीजेपी सरकार जब तक रहेगा हमारे जैसे दरिद्र सीमारेखा के तल मिडिल क्लास लोग जी नहीं सकते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा है ना, असम का चीफ मिनिस्टर, बहुत बुरा है। पूरा असम का लोग बीजेपी से नफरत हो गया है, राहुल गांधी से मोहब्बत हो रहा है। मोदी जी will decide मंदिर कौन जा सकता है, कब जा सकता है और कब नहीं जा सकता। मुझे बताइए मैंने गलती क्या की? मुझे वहाँ इनवाइट किया गया, अब एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है नहीं जा सकते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं जा सकते हैं? क्या गलती की है मैंने? मैं बस हाथ छोड़ने जाना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, बट ये अलाउ नहीं कर रहे हैं। अब देख रहे हैं, बस मैं कारण पूछ रहा हूँ। नाउ गवर्नमेंट एंड मोदी जी विल डिसाइड मंदिर कौन जा सकता है, कब जा सकता है और कब नहीं जा सकता है। शायद आज सिर्फ एक व्यक्ति मंदिर में जा सकता है। समिति पर, असम के मुख्यमंत्री पर दबाव है और हम सब जानते हैं असम के मुख्यमंत्री पर किसका दबाव होता है। तो मैं और लोकल एमएलए जा सकते हैं। नहीं तो ये जा सकते हैं, मगर मैं नहीं जा सकता। तो मैंने क्या गलती की है? शंकर देव जी
जो असम का कल्चर है, असम की हिस्ट्री है, असम का सोचने का तरीका है, उसके एक प्रतीक हैं, सबसे बड़े प्रतीक हैं। हमने सोचा था कि अगर हम असम आएंगे तो उनके सामने सिर झुकाना चाहिए, इसलिए हम उनके मंदिर जा रहे थे। वहाँ पे हमें परमिशन मिली थी, मगर सरकार ने आज रोक दिया हमें। मगर ठीक है, हम उनकी सोच का पालन करेंगे, अपने काम में उनकी सोच का प्रयोग करेंगे। वो सब धर्म, सब जात, सब भाषाओं को एक साथ लेकर चलते थे। दिल में उनके करुणा थी, तो वो एक जीने का तरीका है और उसका हम पूरा समर्थन करते हैं और उस प्रकार से ही हम जीना चाहते हैं। वो आज जो हिंदुस्तान में हो रहा है, जो देश को बांटा जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, वो उनकी सोच के खिलाफ है। और ये जो हमारी यात्रा है, शंकर देव जी की फिलॉसफी की यात्रा है। एक महिला मिली जो बोले कि हम राहुल जी के लिए एक गामूसा हम लाए थे, तो वो भक्त थी। तो उसी के होते हम आपके शंकरदेव स्थान पे हम जन्म स्थान से तो ये दे रहे हैं। और वहाँ पे जितने भी वहाँ पे हमें प्रार्थना करते हुए वहाँ पे जितने भी संत थे, जितने भी पुजारी थे, सभी ने हमने उनको दरखास्त की आपको आशीर्वाद देने के लिए। उन्होंने सभी ने बोला है कि हमारी आशीर्वाद राहुल जी के साथ। मैंने सोचा था अगर हम असम आए हैं तो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम भी उन्हीं के रास्ते पे चलते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, नफरत नहीं फैलाते हैं। तो वो हमारे लिए एक गुरु जैसे हैं, हमें डायरेक्शन देते हैं। तो मैंने सोचा कि जाके मैं वहाँ मत्था टेक लूँ। उनका इनविटेशन आया था, 11 तारीख को इनवाइट किया था, मगर फिर यहाँ पे हमें कहा गया कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। अजीब सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, गौरव गोगोई जी जा सकते हैं, बाकी सब लोग जा सकते हैं, सिर्फ राहुल गांधी नहीं जा सकता। तो पता नहीं, कोई ना कोई कारण होगा। जब मौका मिलेगा मैं जाऊंगा। और मेरी सोच है कि जो शंकर देव जी ने कहा था, जो रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते पर देश को और असम को चलना चाहिए।
people of Assam, beyond the mythology of Brahmaputra, they have a romantic connection with Brahmaputra. There is one very nice line, which is the Mahabahu Brahmaputra, Mahamilanor Tirtho. तो महामिलन का तीर्थ, तो ये ब्रह्मपुत्र के किनारे सब लोग समुदाय एक यहाँ पे एक मिलन है, यहाँ पे एक संगम है, और ये इसको आप तीर्थ स्थान की तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं. So that's the connection we have. Your chief minister's corruption. What is the main thrust of his corruption these days? अभी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर है, खुद चीफ मिनिस्टर. जो बजट है सब बजट पीडब्ल्यूडी दे देता है. पीडब्ल्यूडी दे देता है और हर एक काम में 10% पहले ले लेता है काम. 10% दो, इसके बाद अलॉटमेंट होगा, नहीं काम नहीं अलॉटमेंट होगा. उसका वाइफ के नाम में तो बहुत बड़ा एक प्राइवेट स्कूल भी है. करप्शन माने रैंडम करप्शन चल रहा है. One major issue that everybody is talking about is rampant corruption. Corruption has just increased a lot. And at the time of high inflation, high unemployment, this is really bugging the people. The government is trying to soothe the people's tempers by giving some small financial donations or financial schemes. But the fact is that people are seeing that the BJP government here in power, the kind of corruption, a chief minister who is in charge of the PWD department and is just using road projects and flyover projects to just enrich, and a family who is just so blatantly acquiring land, estate. Everybody, every nook and corner, people, they know that the family, especially the wife, is just acquiring this mass property. So there's a lot of frustration there. हम कल सुबह 7:30 सुबह 8 बजे असम का 15 अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी बैठ के ये का खिलाफ जैसे भी हो, हम किसी भी कीमत में का को स्वीकार नहीं करेंगे. अभी तक असम का किसान का जो सबसे बड़ा समस्या है, रिवर लाइन एरिया में जो रहता है, इसका भूमि नहीं है, जमीनें नहीं है. तो सीएम का वादा था मैं भूमि देगा, लेकिन अभी तक भूमि ऐसा हुआ असम में, गुवाहाटी सिलसाकू में वुमेन ने सर नेकेड होकर हाफ नेकेड होकर धरना प्रदर्शन करना पड़ा. ये असम का इतिहास में कभी भी वुमेन हाफ नेकेड नहीं हुआ सिलसाकू में. ये जो समस्या है इन लोग ने नहीं निभाया. इन लोग ने सिर्फ 1200 रुपया रेट बना दिया पूरा असम का आदमी को. असम का आदमी को, महिला को मिलता है 1200 रुपया और उसका बीबी को मिलता है 10 करोड़. गुवाहाटी एयरपोर्ट का नजदीक में छीन लिया. वो कितना जमीन लिया उसने? सीलिंग सरप्लस लैंड है, जो सीलिंग सरप्लस लैंड वो जमीन होता है जिसका हाथ में लैंड नहीं है उसको देने के लिए, वो गवर्नमेंट रूल में लिखा है. वो ले गया नहीं, उसको दिया, दे के लिखा लिया. सीएम का वाइफ का जो कंपनी में लिखा दिया. पूरा फॉरेस्ट एरिया है, उसमें अचानक 3 महीना का अंदर 100 बीघा माटी ये 3 महीना में इंडस्ट्रियल बन गया. सब्जी का दाम, सब्जी मार्केट में, फिश मार्केट में, सब में ये सिंडिकेट है. कोल तो है, ये तो देश में सबसे ज्यादा अगर करप्शन हो तो ये असम सबसे ज्यादा करप्टेड चीफ मिनिस्टर होगा तो असम का चीफ मिनिस्टर. एकदम सच बात. कितने चक्कर लगते हैं आपके दिन में? 1-2 बार इधर से आते हैं, इधर से जाते हैं बस. ये तो ब्रिज हो जाएगा तो बोट बंद हो जाएगा, तो हम लोग को. अच्छा, ब्रिज के बाद बोट बंद हो जाएगा? अब तो जरूरत नहीं होगा ना. मतलब इस ब्रिज के साथ? हाँ. एक जगह जो बोगीबिल ब्रिज बनाया, हाँ, तो उसमें तो एक बहुत सारे 10,000 से ज्यादा लोग बेकार हो गए, क्योंकि ये लोग बेकार हो जाएंगे. अच्छा.
तहसील को बोलो। एक बार फ्रेम बना के आ जाओ, तुम वहाँ पे खड़ा हो जाएगा। गाड़ी पीछे हो जाएगा।